कुछ याद आ रहा है? ये कुछ किया था? कैन यू रिकॉल द स्टूडेंट्स? यस. Did you solve this question, students? Did you solve this question? I asked you to solve this question in the as a homework, students. ऑनलाइन में भी होमवर्क मिलता है, बट आप करते हो कि नहीं पता नहीं. Did you solve it, students? All right, all right. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो. Let us now look at the solution of the students. अच्छा, before we start with this particular, forgot. All right, chalo. Let's quickly revise of what we have seen in the previous lecture, students. So in the previous lecture, students, we have understood few symbols. These symbols were U stands for object distance, V stands for image distance, H1 stands for object height, H2 stands for image height. तो ये हमने पहले से ही पढ़ा है. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था कि U, that is object distance, is always negative because object is always on the left hand side. Object height is taken as positive because object principal axis के ऊपर होता है. Isn't it, students? So therefore H1 is always positive. Then when we talk about students, then we talk about image. Image अगर virtual या erect होगा, अगर वर्चुअल इमेज होगा तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा बिकॉज वर्चुअल इमेज स्टूडेंट्स किधर फॉर्म होता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज इन बिहाइंड द मिरर, स्टूडेंट्स. तो वर्चुअल इमेज क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव होता है. वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है. एंड वर्चुअल इमेज का स्टूडेंट, सिंस वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब क्या स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म होगा. इसके लिए H2 इज पॉजिटिव. हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव, स्टूडेंट्स. रियल इमेज कैसे होता है? रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस इज नेगेटिव एंड स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव. हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव बिकॉज रियल इमेज इज इन्वर्टेड. इन्वर्टेड मतलब क्या? इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हुआ स्टूडेंट्स, तो वो हाइट क्या होगा? नेगेटिव होगा. So we have already learned this, students. We have already learned this. This was just a quick recap of what we have done in the previous lecture. And हमने इतने ये क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स क्या किया था? ये क्वेश्चन के लिए हमने गिवन डेटा वर्कआउट किया था. So now students, what we have is we have a mirror formula. What we have is we have mirror formula, that is 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. So this is the mirror formula जिसमें स्टूडेंट्स मुझे F पता है एंड मुझे U पता है. F पता है, U पता है. सबसे पहले मुझे V ढूंढना है. What am I supposed to find? I am supposed to find V, that is image distance. Image distance मिलने के बाद स्टूडेंट्स मुझे height of image मिल जाएगा. स्टूडेंट्स H2 मुझे मिल जाएगा. So let us now quickly revise of what we have done. Let us look at the solution, students. So, all right. Can anyone help me out, students? Can anyone help me out? If you have solved it, please raise your hands. If you have solved it, please raise your hands. I would like to hear it from you. Yes, Josh. Good evening, sir. Josh. Yes, good evening, beta. All right, chalo. Can you tell me the substitution what you made? Can you tell me the substitution that you made? Sir, then we had to use that formula m is equal to h2 upon h1, क्या which, बोल रहे? क्या बोल रहे? sir, that formula we had to use m is equal to Yes, h2 we have upon, to use this formula H2 upon H1 equals to minus V upon U. Yes yes, or sir. no? Yes, But sir. इसमें मुझे V दिया नहीं है ना? Sir, we had found out v. वो no, we did not find V. We have to find it yet. Oh, ये sorry. सिर्फ मैंने बोला था आपको करने के लिए, बट आपको टाइम वाज अप. दैट इज द रीजन व्हाई आई सेड यू सॉल्व इट एट द होमवर्क. अच्छा चल मेरे बेटा ये बता फटाफट, वैल्यूज क्या है बता. 1 अपॉन V वैसे का वैसा. Yes, sir. फिर Uh, mine, प्लस mine plus 1 upon minus 20. U कितना है? -20 है, तो क्या आएगा? प्लस 1 अपॉन -20 इज इक्वल्स टू आगे 1 upon minus 10. 1 अपॉन -10. ऑल राइट. फिर बाद में क्या होगा? ये दोनों क्या होगा बता. It will become minus करेक्ट. तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन 20. 20 इक्वल्स टू क्या? 1 upon minus 10 वैसे का वैसा. अच्छा, -1 अपॉन 10 लिखा तो कुछ गलत किया मैंने? नहीं नहीं.
नीचे का माइनस साइन ऊपर लाया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जश अभी क्या करने का बता, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? स्टूडेंट्स प्लीज मेक द नोट ऑफ दीज स्टेप्स स्टूडेंट्स। यस टेल मी जश। -20 को राइट साइड शिफ्ट करना है। -1/20 को राइट साइड शिफ्ट करेगा मैं, तो क्या आएगा बेटा? 1/v हाँ इज इक्वल टू हाँ -1/10 करेक्ट, क्योंकि उसने अपना जगह छोड़ा नहीं तो उसका साइन चेंज होगा नहीं। हाँ प्लस फिर प्लस 1/20। 1/20। यहाँ पे -1/20 है, वो साइड जाएगा तो क्या होगा? +1/20 हो जाएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी जस्ट क्या करने का बता? फ्रैक्शन का एडिशन है, फ्रैक्शन का एडिशन सबट्रैक्शन है, क्या करने का? सर एलसीएम के लिए विल मल्टीप्लाई 2 टू हाँ 10 एलसीएम क्यों करते हैं बेटा? एलसीएम क्यों करते हैं अपन? सो दैट वी और कैन मेक डिनोमिनेटर इक्वल। सेम। यस और नो? सो यस दैट वी कैन मेक डिनोमिनेटर सेम। तो बेटा मैं किसको क्या कर सकता है? 10 को 20 बनाऊं या 20 को 10 बनाऊं? 10 को 20 10 को 20 बनाना इजी है, क्या करना पड़ेगा? 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेक्ट, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? 1/v इज इक्वल टू -2 -2 अपॉन 20 अपॉन 20 प्लस 1/20। प्लस 1/20। अमेजिंग जश अमेजिंग। अभी मुझे बता बेटा, अभी क्या करूँ? ये 20 को क्या करूँ? 20 + 20 40 करूँ? नहीं सर, वो सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर। कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? -2 + 1 -2 + 1। -2 + 1 कितना आएगा? -1/20। -1/20। So 1/v is -1/20। Am I interested in value of 1/v, Jash? नो सर, तो मुझे किसमें इंटरेस्ट है? ओनली v ओनली v। तो मैं क्या करूँ पता है इसका भी? बाय इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट इंडो करेगा। मैं क्या करेगा? रेसिप्रोकल लेगा। तो 1/v का रेसिप्रोकल लिया, 1/v का इन्वर्ट इंडो किया तो क्या आएगा? v आएगा। v एंड -1/20 का रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा? -20 -20 आएगा। कितना आएगा? -20 सेंटीमीटर। डिड यू सेंटीमीटर। गेट दिस आंसर स्टूडेंट्स? डिड यू गेट दिस आंसर? डिड यू गेट दिस आंसर स्टूडेंट्स? अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलो वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जस्ट अभी नेक्स्ट क्या करना है? मुझे v ढूंढना था क्या? नो मेरा सर, मेन मोटिव क्या था? H2 H2 हाइट ऑफ ढूंढना द was my ऑब्जेक्ट। main motive स्टूडेंट्स। H2 ढूंढना was my main motive। तो अभी मुझे v मिल गया। v कितना मिला? -20 मिला। कितना मिला? -20। अच्छा विल यू हेल्प मी आउट विद द कैलकुलेशन, फर्दर कैलकुलेशन यश? जश यस सर, यस सर। यस गो अहेड प्लीज टेल मी। यस जश प्लीज टेल मी। H2/H1 अच्छा पहले फॉर्मूला लिखते। H2/H1 इक्वल्स टू -v/u। -v/u। दैट्स करेक्ट। H2 कितना है? H2 डू आई नो H2? नो सर, H2 तो ढूंढना है, तो H2 वैसे का वैसा अपॉन हाउ मच इज H1 जश? 10 करेक्ट। H1 इज +10 इक्वल्स टू। अभी इसका सब्स्टिट्यूशन सही से बता, एकदम सही से बता। देख यस सर, माइनस ऑफ -20। करेक्ट। क्या आएगा? माइनस, ये साइन माइनस वैसे का वैसा, ब्रैकेट में v कितना मिला स्टूडेंट्स? v कितना मिला? -20 मिला ना, तो बाद में आएगा -20 ब्रैकेट में। वेरी नाइस जश वेरी नाइस। डिवाइडेड बाय -20 कितना आया? -20। वेरी नाइस। u इज हाउ मच? u इज -20। u इज -20। ऑल राइट चलो अभी ये कितना आएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +20। तो H2/10 इक्वल्स टू माइनस माइनस विल बिकम +20 डिवाइडेड बाय क्या? -20। -20। अच्छा कैंसिल करो इसको। यस सर, कैंसिल किया तो कितना बचेगा? -1। -1। सो H2/10 इज इक्वल्स टू -1। तो H2 कितना आएगा?
-1 into 10. Correct. -1 into 10, which is equals to how much? -10 centimeters. -10 centimeter स्टूडेंट्स. यस, सो हाइट क्या आया स्टूडेंट्स? -10. अच्छा, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे? जस्ट बता सकता है मुझे? Sir, it is real and inverted image. हाइट नेगेटिव आया स्टूडेंट्स. हाइट क्या आया? देखो, H2 नेगेटिव आया. H2 नेगेटिव आया मतलब क्या? मतलब क्या? इमेज कैसा है? Real and इन्वर्टेड इमेज है. इमेज कैसा है? इन्वर्टेड इमेज. सो व्हाट इज दिस इमेज? इन्वर्टेड. व्हाट इज दिस इमेज? इन्वर्टेड इमेज. एंड इन्वर्टेड इमेज कैसा होता है? रियल इमेज होता है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो एग्जाम में स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपको -10 लिखना है, राइट? एंड माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज एन इन्वर्टेड इमेज. टेक्स्ट बुक में हाइट क्या दिया है? टेक्स्ट बुक में फाइनल आंसर ऐसे दिया है, हाइट ऑफ इमेजेस 10 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज इन्वर्टेड. ऐसा लिखा है इमेज इज इन्वर्टेड? हैव दे रिटन इमेज इज इन्वर्टेड? नो. अगर उन्होंने इमेज इन्वर्टेड ऐसा नहीं लिखा है तो वो आंसर गलत है. यहाँ पे -10 आना चाहिए. माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज इन्वर्टेड स्टूडेंट्स. एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? तो सही आंसर क्या है? -10. All right. Did you understand this question, students? Did you understand this question? Amazing, amazing. Now, I want you to solve one question on your own, students. I want you to solve one question on your own. Are you ready to do that, students? Are you ready to do that? Chalo, so this is the question you have. Chalo. Go ahead, write the given data. I want you to write given. You have 3 minutes, students. You have 3 minutes to write given data. sir, I'll mute. I give you 3 minutes, students, to write given data. It is a very similar question, students. राजश्री जैसा क्वेश्चन है ये, स्टूडेंट्स. थर्टी seconds gone. 30 seconds gone, students. Write given, find and formula. क्या बात है, साक्षी का हो गया. वेरी नाइस साक्षी. अच्छा, रेफरेंस के लिए ना स्टूडेंट्स, रेफरेंस के लिए ना मैं शीट ऐसे रख देता हूँ. ये ऐसे शीट रख देता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा. F for concave is negative. F for convex is positive. U always positive. H1 always positive. U always negative. Sorry. U always negative. H1 always positive. तो आपके लिए ये मैंने रखा है. When you write, you are also supposed to, students, give the correct signs. Aditi का भी हो गया. Very nice. You are left with 2 minutes, students. 2 minutes. Do it quickly, students. Read the sum properly, students. Read the sum properly. Do not write the question. Do not write the question. Write given data. Question नहीं लिखना है आपको. You have to write the given data, students. This is your question from the exercise, students. रिद्धि का भी हो गया. Very nice. Very nice. All right. All right. 1 minute left, students. 1 minute left. Sir, my finished. Sai Takshila.
All right. Let us now look into the students. Let us now look into the given data. Let us now look into the given data. All right. Who will like to help me out? Who will like to help me out, students? Who will like to help me out? Please raise your hands. Please raise your hands. चलो इंटरैक्ट करो यार, मैं अकेला बोलता है. रजीन. रजीन. Hello, sir. All right, रजीन. चलो. How are you doing, बेटा? I'm fine, sir. How are you, sir? बस ग्रेट. अच्छा चल, अभी मुझे खुश कर, फटाफट गिवन डेटा बताओ, मेरे को खुश कर. चल Yes, sir. अभी क्या पढ़ा है, क्वेश्चन क्या पढ़ देख. An object of height 7 centimeter बस is... बस बस. Yes, sir. Sir, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर मतलब क्या दिया है? H1 दिया है, sir. H1 is हाइट ऑफ equal to 7 ऑब्जेक्ट दिया है centimeter. H1 कितना दिया है? 7 centimeter. 7 सेंटीमीटर. प्लस या माइनस होगा? Plus. क्यों प्लस होगा? Sir, because object is kept behind the mirror. Above the principal Above axis. the How is principal object axis. placed? Above the Above the principal principal axis. So definitely क्या आएगा? H1 प्लस आएगा. H1 क्या होता है? Is always positive, right? आगे बता Yes, बेटा. sir. Is kept at a distance of 25 centimeter in front of the concave mirror. तो अपन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर आगे रखा है, मिरर के सामने Yes. रखा है. सो व्हाट इज दिस 25 सेंटीमीटर बेटा? Sir, object distance U. 25 सेंटीमीटर इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब क्या? Minus 25 centimeter. हाँ, -25 है, सही है, बट क्या क्या सिंबल क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का? U. करेक्ट. तो u अपने को -25 दिया. u इज ऑलवेज नेगेटिव स्टूडेंट्स, इजंट इट? u इज ऑलवेज नेगेटिव. सो u इज -25 सेंटीमीटर. अमेजिंग अमेजिंग. चलो अभी कौन सा मिरर बताया ये? Sir, concave mirror. इट इज अ कॉनकेव मिरर. इट इज अ कॉनकेव मिरर. ऑलराइट, आगे बता. The focal length of the mirror is 15 centimeter. बता क्या है? F is equal to -15 centimeter. f is equals to -15 centimeter. Why minus? Because focal length of concave mirror is negative, isn't it? Yes, Focal sir. length of concave mirror is negative. इसके लिए वो आया -15 सेंटीमीटर. अमेजिंग अमेजिंग. चलो आगे बता. फाइंड क्या करना है बता. At what distance from the mirror should a screen be kept so as to get a clear image? So we have to Why are find you the... supposed to place a screen? Screen place करने का कारण क्या है? Sir, real or inverted स्क्रीन image प्लेस to करने का be- कारण क्या है? इमेज क्रिएट करने के लिए. क्या करने के लिए बेटा? इमेज क्रिएट करने के लिए. मतलब इनडायरेक्टली व्हाट आर दे आस्किंग अस टू फाइंड? Sir, they are स्क्रीन asking us कहाँ to पे रखना है, find... मतलब व्हाट आर दे आस्किंग अस टू फाइंड? Sir, they are asking us to find the distance of the image. इमेज डिस्टेंस. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. तो उन्होंने अपने को पूछा है इमेज डिस्टेंस. दे आर आस्किंग अस मैं स्क्रीन कहाँ पे रखूं, मतलब मैं इमेज डिस्टेंस ढूंढूं. दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग अस. एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? तो इमेज डिस्टेंस इज गिवन बाय, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस V. गिवन बाय बेटा? V. करेक्ट. तो मुझे v ढूंढना है. क्या ढूंढना है? v ढूंढना है. V. यस. और क्या ढूंढना है Yes, बेटा? और क्या Sir, ढूंढना है? what will be the size and the nature of the image? So we have to find the तो साइज height of the मतलब क्या? object, साइज ऑफ द image. इमेज मतलब क्या? साइज ऑफ द Height. इमेज मतलब क्या? H2. हाइट ऑफ द इमेज मतलब h2 ढूंढना है. और तीसरा चीज क्या ढूंढना है? Nature of the image. We have to also find the nature. What are we supposed to find, students? We are also supposed to find the nature of the image. Everybody understood till here? Everybody understood till here? अच्छा, कितने लोगों ने ये given find सही से लिखा? कितने लोगों ने given find सही से लिखा? Please raise your hands. I want to see how many of them have written this very properly. साइंस के साथ स्टूडेंट्स, साइंस के साथ प्लीज रेज योर हैंड्स. आई वांट टू सी मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड्स. साइंस के साथ सब कुछ सही लिखा है क्या? गिवन फाइंड along with the science, did you write it properly? Only 23 kids. Oh, only 25, only 28. Okay. All right. So good enough, students. I hope you are understanding how to find the given data now. अच्छा, अभी बेटा आगे क्या है? फॉर्मूला क्या बताया? So formula is 1 upon F is equal to
1 upon v plus 1 हाँ, upon u. 1 upon f equals to 1 upon v plus v 1 upon u 1 upon v plus plus 1 1 upon upon u. u. ये इसको इधर लिखा तो भी चलेगा। डन एवरीबॉडी? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो ये फॉर्मूले से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स मुझे? ये फॉर्मूले से क्या मिलेगा मुझे? नाउ यू शुड टेल मी, यू शुड टेल मी नाउ। ये फॉर्मूले से क्या मिलेगा? Sir, v. करेक्ट, ये फॉर्मूले से मुझे v मिलेगा। क्या मिलेगा? बिकॉज मेरे पास, डू आई हैव u स्टूडेंट्स? डू आई हैव u? आई हैव u, आई हैव u। डू आई हैव f स्टूडेंट्स? आई हैव f, आई हैव f। तो मुझे क्या मिलेगा? v मिलेगा, राइट? तो मुझे v मिलेगा। चलो लेट अस फाइंड v स्टूडेंट्स, लेट अस फाइंड v। हु विल हेल्प मी आउट? Who will help me out to find v? You can start the solution, Sir, students. should I You can mute start the myself? solution. Who will help me out? Beta, you may mute yourself, beta. I'll ask someone else to help me out now. Thank you so much, beta. All right, who will help me out? Ankita, Ankita More, will you help me out? Hello, sir. Yes, Ankita. Yes, sir. चलो बता बेटा, क्या करेगी? सब्स्टिट्यूशन बता सकती है मुझे? Yes, sir. चलो बता। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है वापस बता। 1 upon v हाँ, plus 1 upon u करेक्ट। is equal to 1 upon f. चलो अभी सब्स्टिट्यूशन बता। देख क्या क्या है तेरे पास। u है और f है। u कितना है? -25. तो क्या आएगा सब्स्टिट्यूशन बता। 1 upon v हाँ plus हाँ 1 upon -25 करेक्ट। is equal to 1 हाँ। upon 15. 1/15 आएगा या -15 आएगा? -15. करेक्ट, 1/-15। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/-15। अमेजिंग। अच्छा, ये दोनों को क्या होगा? ये दोनों का ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। करेक्ट, 1 तो क्या upon आएगा? v हाँ -1 upon 25 हाँ is equal to 1 हाँ। upon -15. अच्छा, -1/50 लिखा तो चलेगा? 1/15 चलेगा। चलेगा। अमेजिंग। अच्छा, व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट स्टेप? 1 upon -1/25 को राइट साइड को। करेक्ट करेक्ट, तो बता व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप। 1 upon v हाँ is equal to करेक्ट। -1 upon 15 दैट्स करेक्ट। plus 1 upon 25. प्लस 1/25। यहाँ पे -1/25 था। When this -1/25 students goes to the right hand side, it is going to be definitely plus 1/25. Minus will become plus. अच्छा, अभी बेटा क्या करने का मुझे बता। LCM. LCM लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? LCM, राइट? तो अभी मेरे पास 15 है एंड मेरे पास क्या है? 25 है। 15 है, 25 है। 15 को 25 नहीं कर सकता, 25 को 15 नहीं कर सकता। Isn't it? Isn't it? Yes. तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा, ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 15 के टेबल में भी आता है, 25 के टेबल में भी आता है। 15 के टेबल में 5 आएगा क्या? 15 1 जा 15, 15 2 जा 35 किधर से आएगा? करेक्ट। नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स? कौन सा नंबर है बेटा? कौन सा नंबर है जो 15 के टेबल में भी आता है, 25 के टेबल में? 75. करेक्ट। 75. व्हाट इज द आंसर? 75। व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट्स? 75। तो 75 इज द LCM। 75 इज द LCM। अच्छा, 15 को 75 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करने का बेटा? 5 से। करेक्ट। 15 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 75 मिलेगा। एंड 25 को 75 बनाना है, सो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई इट विद? 3 से। 3. करेक्ट। तो स्टूडेंट्स नाउ आई हैव, मुझे किससे क्या मल्टीप्लाई करना है? नाउ आई नो मुझे किससे क्या मल्टीप्लाई करना है। कैन आई इंप्लीमेंट दिस इन द फ्रैक्शन? कैन आई इंप्लीमेंट दिस इन द फ्रैक्शन? अंकिता टेल मी, अभी Yes. क्या करूं मैं बता।
15 को किससे मल्टीप्लाई करूं 75 बनाने के लिए? 5 से। 15 को किससे मल्टीप्लाई करने का? 5 से। तो 15 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या करने का? न्यूमरेटर को If भी I मल्टीप्लाई करना। multiply denominator, I have to multiply same number in the न्यूमरेटर। करेक्ट। तो अगर मैंने 5 से वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो मुझे 5 को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, isn't it? अच्छा, अभी नेक्स्ट टेल मी व्हाट डू आई डू विद 25? मल्टीप्लाई बाय 3। करेक्ट, 25 को आई मल्टीप्लाइड बाय 3। डिनोमिनेटर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा बेटा? 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो व्हाट डज 1 अपॉन v बिकम नाउ? व्हाट डज 1 अपॉन v बिकम नाउ? -5 1 upon multiplied by 5 is -5 upon 75 upon 75 plus 3 upon 75। plus 3 upon 75। अच्छा, ये किया इतना अपन ने क्यों किया? कि मुझे डिनोमिनेटर सेम करना था। डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये एलसीएम क्यों लिया मैंने? व्हाई डिड आई डू दैट स्टूडेंट्स? बिकॉज आई वांटेड टू मेक डिनोमिनेटर सेम। इज माय पर्पस सैटिस्फाइड? इज माय पर्पस सॉल्व? डिड आई गेट व्हाट आई वांटेड स्टूडेंट्स? मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या? यस। अभी अंकिता आगे क्या करने का? कैन यू टेल मी? टेक द डिनोमिनेटर सेम। तो 1 अपॉन वी तो लिखो पहले। 1 अपॉन वी वैसे का वैसा डिवाइडेड बाय 75। आई टेक 75 कॉमन। वेरी नाइस। एंड ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? -5 plus 3। -5 plus 3। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, आगे क्या होगा फिर बता मुझे। -5 plus 3 will be -2 upon 75। -2 upon 75 -5 plus 3 will become -2 upon 75, right? अच्छा, ये स्टूडेंट्स, am I interested in value of 1 upon v? Am I interested in value of 1 upon v, अंकिता? नो। तो क्या करूं मैं इसका? क्या करूं मैं इसका? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल किया तो v इक्वल्स टू क्या आएगा? LHS का किया तो मुझे RHS का भी क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? Which is going to be 75 upon 2। अच्छा, व्हाट इज 75 टू 75 का आधा कितना होता है स्टूडेंट्स? 75 का आधा कितना आएगा? 75 का हाफ इज 37.5। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 37.5। एंड ये माइनस साइन भूलने का क्या? माइनस साइन भूला तो हाफ मार्क गया। तो दिस इज गोइंग टू बी -37.5 सेंटीमीटर। What does minus sign indicate, students? What does Ankita minus sign indicate, beta? It is inverted। Inverted image है। ये कैसा है? This image is real and inverted। V minus है बेटा। V क्या है? V is minus। V is minus। V is minus इसका मतलब क्या? It is a real and inverted image. Did you understand this, Ankita? Yes sir। Amazing, amazing, amazing। अच्छा, यहाँ खत्म हो गया अपना सम स्टूडेंट्स। और क्या ढूंढना अभी? V मिल गया मुझे। V कितना मिला? -37.5 सेंटीमीटर मिला। कितना मिला? -37.5। नाउ व्हाट एम आई सपोज टू फाइंड? अच्छा, नेचर भी मिल गया, V भी मिल गया। नेचर भी मिल गया, V भी मिल गया। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड स्टूडेंट्स? वी आर नाउ सपोज टू फाइंड H2। अंकिता, यू कैन म्यूट। थैंक यू सो मच बेटा। यस, अभी कौन Thank हेल्प you, sir। करेगा H2 फाइंड करने के लिए? हु विल हेल्प मी आउट? हु विल हेल्प मी आउट? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। संप्रीत, संप्रीत, संप्रीत,
रसिका, रसिका, कैन यू हियर मी? पूर्णिमा, यस सर। यस बेटा। चलो अभी क्या ढूंढने का अपने को? H2। H2 ढूंढना है। H2 के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास? व्हाट फॉर्मूला शुड आई Sir, यूज? H2 upon H1 is equals to हाँ। minus V upon U। शाबाश। क्या फॉर्मूला है मेरे पास? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। 1 सेकेंड, आई हैव वैल्यू फॉर, आई हैव फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन विच इज H2 upon H1 that is equals to minus V upon U। चलो अभी मुझे ना क्या कर, तू सब्स्टिट्यूशन बता। चलो देखो यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूशन। H2 कितना है? So H2 we टू नॉट H2 नो, we don't know। तो मैं उसको वैसे का वैसा लिखूं, Yes। डिवाइडेड बाय। चल आगे बता। H1 is 7। H1 is 7, H1 is 7, अमेजिंग। फिर आगे बता। U is minus 25। U is minus 25, किधर लिखूं? नीचे। minus 25, all right। and V कितना है? V is minus 35.75। minus 37.5, कितना? is minus 37.5। कैसा लिखूं बता? डायरेक्टली लिखूं यहाँ पे minus 37.5? Yes yes sir। पूर्णिमा, टेल मी क्या करूं मैं? कैसे लिखूं बता? minus minus 37.5 37.5। सही है? इज इट राइट? No sir। बेटा we V have का to- वैल्यू कितना है? V का minus 37.5 है ना, बट फॉर्मूले Yes, में sir। माइनस साइन भी है ना, हाँ। तो वो तूने मिस आउट कर दिया, तो उसको ब्रैकेट में माइनस लिखना पड़ेगा। समझा? Yes sir। Everybody understood this? Did you do the substitution, students? Did you do the substitution? Amazing, amazing। चलो आगे बता बेटा क्या आएगा? H2 upon 7 7 equals to, ये माइनस एंड ये माइनस क्या हो जाएगा? plus प्लस हो जाएगा। एंड ये माइनस क्या हो जाएगा? वैसे का वैसा रहेगा। तो व्हाट वी हैव इज 37.5 divided by 25, 75 divided by 25। Yes, अभी लेट अस सॉल्व दिस। यहाँ पे डिनोमिनेटर है ना, सो यहाँ पे डेसिमल है। yes व्हाट वी हैव इज वी हैव डेसिमल। बेटा डेसिमल मुझे नहीं चाहिए, तो व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई दिस विद? 10 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एक काम करते चलो 10 से मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्टली 25 से कैंसिल हो जाएगा ना, 25 से कैंसिल हो जाएगा। yes sir। ऑल राइट, चलो 5 से कैंसिल करते हैं। 5 कितने सा 25? 5 जा 5 5 सा 25। इज माय वीडियो पॉज स्टूडेंट्स? इज माय वीडियो पॉज्ड? yes sir। इज इट? यस। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अभी कुछ दिख रहा है क्या? no sir, it is off। All right. Now are you able to see it? no sir। Are you not able to see it? Acha, yes, now we are able to see it. All right, all right. Okay, sure. So now, if you try to see students, if you divide this, 5 से divide हो जाएगा, yes ठीक sir। है? अच्छा, अभी यहाँ पे कितने से divide होगा देखो? 6 यहाँ पे जा कितने से divide होगा?
5 7s are 5 7s are 35. बचा कितना? 2. Two. बचा कितना? 2. 2. फिर 37 minus 35 is 2. अभी कितना आएगा? 5 5s are 25. सो अभी यहाँ पे डेसिमल देना पड़ेगा, एक नंबर के पहले डेसिमल देना पड़ेगा. सो इट इज गोइंग टू बी 7.5. अच्छा 7.5 एंड 7.5 एंड 5 डिवाइड हो जाएगा. Yes, sir. 5 1s are 5. 5 कितना था? 75. फाइव कितने का? 75. 5 1s are 5. बचा 2. Again 5 5s are 25. So what we have is we have 1.5. So students, H2 upon 7 is equals to 1.5 minus 1.5. H2 upon 7 is equals to minus 1.5. Fine. So what do we have? What do we have, students? Therefore, H2 will be how much? 7 को उधर लेके जाओ तो 7 जब उधर जाएगा 1.5 के पास जाएगा तभी what are we going to have? 1.5 multiplied by By 7. 7. That comes out to be how much? 10.5. कितना आएगा स्टूडेंट्स? 10.5. तो हाइट कितना है? माइनस 10.5. Did you understand this, students? Did you understand this? Did you understand this? Any questions? Any questions? Very nice, beta. Thank you so much. Thank you so much. All right. So this is the solution, students. This is the solution, right? All right. All right. All right. So अभी ये हो गया, students. ये हो गया sum, and now we are left with the last sum, students. We are now left with the last sum. ठीक है? अच्छा, again वो minus. अच्छा बेटा मुझे बता, H2 कोई मुझे बोला कि आंसर है ना, आंसर 10.5 है, प्लस 10.5 है. Tell me, which kind of image did I get, students? Which type of image did I get? Did I get inverted image? Did I get inverted image? अगर मुझे inverted image मिला, अगर मुझे inverted image मिला, तो inverted image का क्या होता है? इमेज का हाइट क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो अगर मुझे प्लस 10.5 मिला तो मेरा आंसर सही होगा क्या? मेरा आंसर सही है क्या? नहीं, आंसर सही नहीं होगा. क्या होगा? वो नेगेटिव होना चाहिए. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ब्रैकेट में उन्होंने दिया होगा 10.5 इन्वर्टेड इमेज. हैव दे मेंशन्ड इन्वर्टेड इमेज इन द ब्रैकेट, स्टूडेंट्स? हैव दे मेंशन्ड इन्वर्टेड इमेज इन द ब्रैकेट? नो. तो यू हैव टू राइट दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, राइट? आपको ये बताना पड़ेगा. Everybody understood this? Everybody understood this? Yes. All right. All right. All right. Now, moving on, students. Moving on. I wanted to solve another sum, students, but let us quickly have a look at the application, students. ठीक है? तो दूसरा तीसरा sum है ना, students. We'll solve it in the next lecture. But there's a very simple topic, that is the topic of applications. ठीक है? नहीं, आपको माइनस 10.5 लिखना पड़ेगा. एग्जाम में स्टूडेंट्स आपको 10.5 सेंटीमीटर लिखा तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड इमेज. अगर आपने सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर लिखा तो आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में द इमेज इज इन्वर्टेड इमेज. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस. सिर्फ 10.5 लिखा तो यू विल हैव टू राइट इन्वर्टेड इमेज, स्टूडेंट्स. यस. ऑलराइट, चलो अभी लेट अस लुक एट द एप्लीकेशन क्विकली, स्टूडेंट्स. लेट अस लुक एट द एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स. ये सम हम लोग बाद में देखेंगे बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम. यस. All right, so let us now talk about the applications. Let me share a screen with you all first. Let me share a screen with you all, students. Yes, yes, yes. One second, one second. Let me share a screen with you all. Okay. All right. I hope you're able to see the screen, students. Yes.
1 second, not this one. All right, all right, all right. So now students, if you try to see, have you seen this kind of mirror, students? Have you seen this kind of mirror anywhere? Yes. Parking lot में दिखता है ना ये mirror, students. Parking lot, mall के entrance, you can see such kind of mirror. Now what is this mirror, students? What is this mirror? This is a convex mirror. What kind of mirror is this, students? This is a convex mirror, right? अच्छा, now if you try to see, ये shop में है ना students, shop में ये ना एक कोने में mirror लगाया है. This is the mirror placed at the shop. Now here, can you see the entire shop, students? Can you see the entire shop? You can see the entire shop. You can see the entire shop. तो students, concave mirror कौन सा image बनाता है? Concave mirror forms a virtual image and that image is always diminished, isn't it, students? तो ये जो shop है, students, शॉप का पूरा एरिया कैप्चर हो गया ये मिरर में, स्टूडेंट्स. शॉप का पूरा एरिया क्या हो गया, स्टूडेंट्स? कैप्चर हो गया ये मिरर में. तो स्टूडेंट्स, जहां पे आप कैमरा नहीं लगा सकते, बट इफ यू हैव टू डू द सर्वेलेंस, स्टूडेंट्स, if you have to see or if you have to monitor the shop, students, what you can use is you can use a convex mirror, students. What can you use? You can use a convex mirror. So convex mirror is used as a security surveillance or in the shop, students. Convex mirror is used in the shop for the security purpose. कोई shoplifting तो नहीं कर रहा है, नजर रखने के लिए, students, what you can do is you can use the convex mirror. Secondly, students, जो कार होता है ना, कार का जो स्टूडेंट्स जो rear view mirror होता है, कार का जो rear view mirror होता है, स्टूडेंट्स, what is that? It is also a convex mirror. कौन सा mirror होता है, स्टूडेंट्स? It is also a convex mirror. So students, car ka rear view mirror is a convex mirror, and students, the convex mirror is also used in the shops for security purpose. शॉप पे नजर रखने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या convex mirror यूज कर सकते हो. Yes. अच्छा, secondly, have you seen such kind of mirror, students? होटल्स में होते हैं ना, होटल्स में ये मिरर्स होते हैं, या ब्यूटी पार्लर में मिरर्स होते हैं, स्टूडेंट्स. अभी ये जो मिरर है, स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस मिरर इज अ कॉनकेव मिरर, स्टूडेंट्स. कॉनकेव मिरर एक मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज दे रहा है. व्हाट इज कॉनकेव मिरर डूइंग, स्टूडेंट्स? कॉनकेव मिरर इज गिविंग अ वर्चुअल एंड अ मैग्नीफाइड इमेज. किधर मिलेगा वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, स्टूडेंट्स? किधर मिलेगा वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज? Virtual and magnified image किधर मिलेगा? Just refer the ray diagram, students. Refer the ray diagrams and tell me where will you get a magnified image, students? Virtual and magnified image. Correct, students. Where will you get it, students? You will get it, and if you place object between focus and pole. अगर object को focus and pole के बीच में रखा, students, तो आपको क्या मिलेगा? You will get a virtual and magnified image, students. तो अगर आपको वर्चुअल एंड इमेज मैग्नीफाइड इमेज मिला, स्टूडेंट्स, तो आपको शेविंग करना होगा, तो शेविंग अच्छे से हो जाएगा. आईलाइनर अप्लाई करना होगा, आईब्रोज करना होगा, स्टूडेंट्स, मेकअप लगाना होगा, स्टूडेंट्स. कैन यू जूम योर फेस एंड सी इट प्रॉपर्ली, स्टूडेंट्स? अगर फेस को जूम किया तो आपका चेहरा अच्छे से दिखेगा, स्टूडेंट्स. यस. तो स्टूडेंट्स, व्हाट वी डू इज we use concave mirror, students. We do use concave mirror for shaving purpose, students. What do we use it for? We use it for the shaving purpose. Everybody understood this? Yes. All right. ये देखा आपने? ये देखा? डेंटिस्ट चम्मच डालता है क्या अंदर, मुंह के अंदर? डेंटिस्ट मुंह के अंदर चम्मच डालता है क्या? नहीं. What they put is dentist puts a concave mirror inside our mouth, so that he can have an enlarged image. He can have a magnified image, students. He can have a magnified image and he can look the cavities in our teeth. Are we understanding this? तो students, concave mirror अपने को magnified image देता है. कौन सा image देता है, students?
मैग्नीफाइड इमेज देता है, इसके लिए इट इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर और ब्यूटी मेकअप मिरर, और स्टूडेंट्स it is used by dentist as well, students. It is also used by dentist as well. Everybody understood this? Everybody understood this? Yes, everybody understood this. Amazing, amazing, amazing. Chalo, any questions you have, students? Do you have any questions? Any questions? All right, now moving on, students, moving on, let us look into more applications. Let us look into more applications, students. Now if you try to understand, मैं क्या किया ना, मैं क्या किया, कौन सा मिरर लिया ये, which mirror have I taken, students? Correct, I have taken a concave mirror. This is a concave mirror and यहाँ पे फोकस है, फोकस पे मैंने बल्ब रखा, क्या रखा, बल्ब. I have placed a bulb. तो डेफिनेटली ये बल्ब से जो इंसिडेंट रेज जाएंगे किसको हिट होंगे, मिरर को हिट होंगे. बल्ब से जो इंसिडेंट रेज जाएंगे स्टूडेंट्स, दे विल हिट द मिरर. अभी इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू फोकस, इंसिडेंट रेज पासिंग थ्रू फोकस, हाउ विल बी द रिफ्लेक्टेड रेज जनरेटेड, हाउ विल बी द रिफ्लेक्टेड रेज जनरेटेड स्टूडेंट्स. इंसिडेंट रेज, they are passing through focus, reflected rays will definitely be parallel to the principal axis. तो students, अगर मैंने concave mirror के focus पे, concave mirror के focus पे students, if I place a bulb, will I have a sharp parallel beam of light? Will I have a sharp parallel beam of light? Will I have a sharp parallel beam of light? Yes. तो students, ये जो sharp parallel beam of light है, this is used to search the object, students, to search the object. तो flood lamps होते हैं ना, flood torch होते हैं ना, torch में कैसा होना चाहिए, ऐसे sharp parallel beam होना चाहिए ताकि वो beam दूर तक जाए. Yes or no, students? पुलिस के पास जो torch होती है या flood lamps होते हैं दूर का object देखने के लिए, दूर तक light जाने के लिए, students, what we need is we need a sharp parallel beam of light. तो students, ये concave mirror जो होता है, concave mirror is also used in flood lights or torches, students. Flood lights या torches में हम लोग use करते हैं. Everybody understood this, students? Everybody understood this? Headlights में भी students, headlights का पीछे का side देखा आपने कैसे होता है students? Curved होता है ना. Headlights का पीछे का side कैसे होता है? Curved होता है. So that is also a concave mirror. And finally, students, if you try to see, concave mirror में incident rays parallel होंगे, Where will the reflected rays meet, students? Where will the reflected rays meet? Reflected rays किधर मिलेंगे? फोकस पे मिलेंगे. तो अभी सोचो, अगर स्टूडेंट सनरेज को मैंने फोकस पे मीट किया, सारे सनरेज फोकस पे से कॉन्सेंट्रेट हुए स्टूडेंट्स, एंड अगर मैंने इधर पेपर रखा तो क्या होगा, पेपर क्या होगा स्टूडेंट्स, जल जाएगा. वेरी नाइस, द पेपर विल बर्न. सो स्टूडेंट्स, कैन आई यूज दिस concentrated, can I use this concave mirror to concentrate the sun rays, and students, concentrate the sun rays and increase the temperature? Can I use it to increase the temperature, students? So concave mirror है ना, अपने स्टूडेंट्स सोलर कुकर पढ़ा है ना, सोलर कुकर में प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के बदले अगर मैंने कॉन्केव मिरर यूज किया स्टूडेंट्स, कॉन्केव मिरर यूज किया, वो सोलर कुकर बेटर होगा? Will that solar cooker be better? Yes, it will be better, students, so that maximum number of rays can converge and वहां पे heating ज्यादा हो, आपका खाना क्या होगा, ज्यादा जल्दी होगा. Are we understanding the students? Yes. So these are the applications of the various mirror, students. Yes. So these are the applications, students. Next part of the lecture, we are going to look into that sum, students. We are going to look into that sum, and we'll be done with this chapter. So we have left with two parts, that is the sum
and students the minimum height of the mirror. So that will cover up in the next lecture, students. Okay, whatever doubts you have, we'll look into the next lecture, students, because we are running out of time, students. Done, everybody? All right. Chalo. Thank you, everybody. I'll see you in the next lecture, students. Bye bye.